My name is Harmandeep Singh, student of class 12th, section C of Government Senior Secondary Smart School, Aniwala 6-1. Today I will discuss a topic of class 12th physics, that is moving coil galvanometer. And my mentors are our respected principal sir, Shri Vipin Kataria ji, and our respected physics teacher, Sir Ramneek Singh. So let's start it. Firstly, we discuss what is galvanometer. So ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ galvanometer. Firstly ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ discuss ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ galvanometer ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ. From definition, it is a device which is used to measure or detects the small, important point है small current. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾ current ਨੂੰ ਆਪਾਂ I denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ current flowing in a electric circuit. Small current मैं क्यों लिखा, क्योंकि ਜਿਹੜਾ galvanometer है ਇਹ ਜਿਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਪੀਅਰ ਟੂ मिली एम्पियर. So we can say it can measure very small current. Understand? So अब लिखिए main functions. अपन को ऐसा पता होना चाहिए पहला galvanometer है कि main functions. First function की है ना, एक ही function means से ये काम की है, एक किस चीज वास्ते बरता है. It give us the magnitude of current. I means current. First function ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, it give us the direction of current. ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. आप कह लिए सपोज कर लिए नेगेटिव टर्मिनल, अपने को पॉजिटिव टर्मिनल. अंडरस्टैंड? जे ਆਪਾਂ ਇਸ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਇਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਧਰ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ 네ਗੇਟਿਵ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ. ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਡਿਟੈਕਟਸ ਦੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ. ਇੱਕ ਦਾ 1 ਲੱਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਐਂਪੀਅਰ ਐਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, that galvanometer is very sensitive. means ਇਹ small ਤੋਂ small current ਨੂੰ measure ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ deflection show ਕਰ ਸਕਦਾ. so AC what is galvanometer?
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो पहला आप इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लिए। इट इज अ डिवाइस which is used to check or we can say that detect the current small। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, small current ਨੂੰ detect ਕਰਦਾ। and voltage ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ potential difference in a electric circuit। understand। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ मूविंग coil galvanometer। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਾਂ CBSE ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, मूविंग coil galvanometer ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟਾਰਕ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਆ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ coil in a magnetic field। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ BA sin थीटा। जिस n की सी अपने कोले आ सी टॉर्क सी अपने कोले रोटेटिंग फोर्स ते अपने कोले n की सी नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है। ते अपने कोले I सी का करंट, B सी का मैग्नेटिक फील्ड ते A अपने कोले सीगा एरिया वेक्टर। ते sin थीटा की सी B ते A दे विच एंगल। ओके ते सो ਆਪਾਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ that when a current carrying coil, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ current carrying coil is placed in uniform magnetic field, ਉਹ ਚ ਸੀ in a magnetic field। यूनिफॉर्म ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ 99% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूनिफॉर्म ਲੈਂਦੇ ਆ। in uniform magnetic field ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field it experiences torque। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟਾਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ मूविंग coil ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਵਟ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ torque is to NI BA sin theta। sin थीटा ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ मूविंग coil ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ sin 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ sin ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟॉर्क, ठीक है। अपने को टॉर्क आ गई मैक्सिमम वैल्यू। हुण जो इधर नॉर्थ टू साउथ अपनी मैग्नेटिक फील्ड जाऊगी, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ अपनी मैग्नेटिक फील्ड जाऊगी इधर नो रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। जिहड़ा इहदा अपने कोले आ जिहड़ी कॉइल है इहदा एरिया वेक्टर मैं तुहानूं समझाउणा एग्जांपल नाल। अपने कोले मान के चलो ये अपने कोले हैगी है कॉइल जी एलिमेंटी भी है, अपने को इत्थे मान के चलो एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर पई है ते इत्थे इहदे सारे ते लपेटती ते कॉइल बन गई, ठीक है। ते जिहड़ा इहदा एरिया वेक्टर है ये हुंदा हैगा वगैरह सेंटर च हुंदा है एरिया वेक्टर ते ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स हुंदा है रेडियली आउटवर्ड्स आप कह सकते हैं नॉर्मल टू दी सरफेस दा कह दईए सेंटर ऑफ दी कॉइल हुंदा, ठीक है। ये अपने को एरिया वेक्टर आ गया इधर नु ते मैग्नेटिक फील्ड जाई जांदी सीधी, इस एंगल कितना हो गया अपने को सीधी जाई जाती है मैग्नेटिक फील्ड इधर है सॉरी एरिया वेक्टर इधर मैग्नेटिक फील्ड सीधी है अपने को एंगल हो गया 90 डिग्री। ये अपने को टॉर्क की वैल्यू आ गई सी, ठीक है। तो जे आप थोड़ा जिहा इहनूं ਉਹ करते हैं डिफ्लैक्ट करते हैं इहनूं अपने कॉइल नूं, ठीक है। तो तां भी एरिया वैक्टर जिहड़ा ਉਹ परपेंडिकुलर है ना, जे हुण थोड़ा जिहा ਆਪਾਂ ऐ करता एरिया वैक्टर इधर नूं आ गया, ठीक है। तो पर जिहड़ी वैल्यू आ इधर नूं आ गई कॉइल ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਸ਼ੇਪਡ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ। 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਪ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਅਲੀ ਆਊਟਵਰਡਸ, ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਨਕੇਵ ਸ਼ੇਪਡ ਮੈਗਨੇਟਸ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, दूसरा अपने को हैगा सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। वो मैं तुहानू दसता भी कोर आपां लई भी है सॉफ्ट आयरन कोर भी जिहड़ी इधरों फ्लो जिहड़ा है रेडियली इधरों जावे नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, कोर आपां लगाई भी है, दो पार्ट हो गए। एक फास्फोरस ब्राउन वायर, ये आपां क्यों लई है, आ इत्थे अपने कोल वायर लगी हुई है फास्फोरस ब्राउन वायर। ठीक है, ये इत्थे एक मिरर लग्या हुआ ते आपां फास्फोरस ब्राउन दी क्यों लई, ये आपां तां करके लई क्योंकि फास्फोरस ब्राउन दा जिहड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट हुंदा के, स्प्रिंग कांस्टेंट हुंदा आपां पिछली क्लास भी पढ़िया सीगा, ओ की दा वेरी वेरी लो हुंदा। ठीक है, ते जिहड़ी गल है जिस करके जिहड़ी ये वायर है ये अपने कोले की करदी है, ये अपने कोले जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स टॉर्क कह सकते जो जी इधर नूं आपां करिए करंट दे करके जिहड़ी अपनी कॉइल मूव करूगी उहनूं अपोज करूगी बैलेंस करने वास्ते भी जिहड़ी हैगी आ वो अपनी पहले वाली जगह ते आ जाए जिहड़ी कॉइल है ते उस करके ये जिहड़ी है ये अपने कोले जिहड़ी वायर आ ये उस काम करके यूज हो। ठीक है, ते अपने कोले थर्ड अपने फोर्थ जिहड़ा हैगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की क्यों लाया आपां, जिहड़ा कॉनकेव मिरर है ये आपां नूं एंगुलर डिफ्लैक्शन जिहड़ी हुई है जिहड़ी कॉइल है थोड़ी जी इधर मूव करके या इधर मूव करके वो आपां नूं दसदा हैगा। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर दा ये काम है। फिर लेवलिंग स्क्रूज, लेवलिंग स्क्रूज आ स्क्रू इन्हां नूं कहंदे लेवलिंग स्क्रू। ये जिहड़ी हैगी आ जिहड़ा सारा सिस्टम अपना जिहड़ा सिस्टम है ये जो सिस्टम है एक अब कह लइए बॉक्स मान लीजिए जो भी ये नॉन मैटैलिक बॉक्स दे विच कीता जाके जिहड़ा भी एयर दा हैगा कोई भी इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड या जोड़ा भी हैगा अपना वो ना पवे, इनू एक नॉन मैटैलिक बॉक्स दे विच सारा जिहड़ी अरेंजमेंट आ वो कीती हुई है। ते सारी अरेंजमेंट जिहड़ी गल हॉरिजॉन्टली आपां कह लइए हॉरिजॉन्टली इनू प्लेस करने वास्ते इहदे ते आपां लेवलिंग जिहड़ा लेवल है जिहड़ा अपना ते वो आपां भी हॉरिजॉन्टली इक्वल रखने वास्ते आपां इत्थे लेवलिंग जिहड़े हैगे स्क्रू लाए हैं। ये अपनी सी कंस्ट्रक्शन। हुण आपां वर्किंग की गल करते हैं भी ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क किवें करता है। ठीक है, हुण जे आपां वर्किंग की गल करिए भी आपां जे लैट कर लईए जो इत्थे टर्मिनल आपां सॉरी आ टर्मिनल हैगे आ इन्हां नाल आपां जे जदों वायर कोई जोड़ती जिसों करंट फ्लो कर रहा। ठीक है, वो करंट इस कॉइल दे विचों फ्लो करूगा। ठीक है, तो फ्लो करन ते जिहड़ी करंट दी डायरेक्शन है वो इस तरह हो जाएगी, उत्तों करंट आऊगा इधर 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 मैग्नेटिक फील्ड ऐ जा रही है। ठीक है, आपां नूं पता आपां नूं सर ने समझाया गया FBI के हिसाब नाल जिहड़ी फोर्स है ते फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कह लईए। ठीक है, ते जां कहने मूवमेंट ऑफ कॉइल कह लईए। ठीक है, वो एक दूसरे दे परपेंडिकुलर हैगा मैग्नेटिक फील्ड करंट ते फोर्स दी। ठीक है, अपने कोले जिहड़ी हैगी है करंट मूव कर लिया आपां डायरेक्शन लईए करंट थल्ले नूं मूव कर रहा ते मैग्नेटिक फील्ड अपने इधरले पासे मूव कर रही है, जिहड़ी फोर्स होगी वो अपने कोले की होगी इधर नूं होगी फोर्स। ठीक है, फोर्स इधर नूं होगी बाकी जिहड़ी आ कॉइल आ ये इधर नूं डिफ्लैक्ट करूगी, आ जिहड़ी कॉइल आ ये ऐ हो जाऊगी। ठीक है, इत्थे कपलिंग लगूगा जब कहते
कपल ऑफ कह दी फोर्स लगणगे। रोटेटिंग फोर्स होगी जी, एक फोर्स इधर नूं लगूगी इनू ऐ मोड़ूगी, एक फोर्स इधरों लगूगी इधर नूं जी इनू ऐ मोड़ूगी। ठीक है, ये अपने को हो गया फोर्स जी अपने को टॉर्क लग रही है। अब कह रही मैं जो टॉर्क लगी तो लेट करिए आप लेट ड्यू टू टॉर्क एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ coil becomes थीटा। अब थीटा सपोज कर लिए ते अब कह लिए लेट करिए एट इक्विलिब्रियम जो जी रोटेटिंग फोर्स है जी रोटेट कर रही है टॉर्क जी लग रही है वो जी स्प्रिंग जी अपने को फास्फोरस ब्राउन जी वायर है ये जी रीस्टोरिंग फोर्स ला रही है, रीस्टोरिंग रोटेटिंग फोर्स जी ला रही है भी बैलेंस करने वास्ते वो मैक्सिमम होगी भी इस तो बाद ये नहीं मुड़ सकता कह रही है। ठीक है, इक्वल हो गए मैं कह रही है एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम की होगा अपने को जी हैगी आ रोटेटिंग फोर्स जी क्या कह दिए डिफ्लेक्टिंग फोर्स जी वो की इक्वल हो जाएगी रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो आपां नूं पता है कि जी रोटेटिंग फोर्स है वो टॉर्क किसी कॉइल ते कितनी लगती है तो वो आपां नूं वैल्यू पता है की हैगी आ एन आई बी ए। अब मैक्सिमम आ रहा है भी मैक्सिमम क्योंकि मैक्सिमम भी लग सकती है मैक्सिमम ते ही इधरों ये भी मैक्सिमम होगी मैक्सिमम होगी एक दूसरे अपोजिट है तो इक्वल हो जाएंगे भी उत्थे बैलेंस हो जाएगी जी अपनी कॉइल है उत्थे फिर एट रेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हैगा कि थीटा थीटा डिफ्लेक्शन हुई है। ठीक है, ये अपने को लगी टॉर्क जी लग रही है ते के है अपने को स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ते थीटा है डिफ्लेक्शन। अब के नूं ये भी कह सकते हैं इट इज दी डिफ्लेक्शन पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है, भी जे हुण के टाइम्स भी ट्विस्ट होया कोई भी हम एक रस्सी लै लीए जां एक झूला लै लीए झूले नूं आपां रोटेट करिए अब फस्ट जो पहला रोटेट करांगे वो तो अपने को आराम नाल हो जाऊगा। ठीक है, जो 2-3 बारी रोटेशन करांगे और झूले नूं आपां रोटेट करांगे तो वो अपना ज़्यादा जोर लगन लग जाऊगा क्योंकि जी अपोज कर रही है उन्होंने ना अब कह दीए उन्होंने ना रिवॉल्व करन च वो वध रही है पावर। ठीक है, अब कह दीए थीटा पहला डिफ्लैक्ट होया पूरा नहीं रोटेट किया एक ट्विस्ट नहीं होया अब कह दीए थीटा होया जे हुण मान के चलो एक पर यूनिट जी अपने को कह दिए रोटेशन या ट्विस्ट कह दिए की वैल्यू के वाली 1 रोटेशन होगी के 1 रोटेशन कदों हुई जो थीटा अपने को हो गया अपने को 2 पाई हो गया चंगी तरह मुड़ गया। ठीक है, उन्होंने कह दिए 1। ठीक है, थीटा है भी ये आप 1 डिग्री 2 डिग्री जितना मर्जी हो सकता इट्स नॉट मैटर। ठीक है, तो हुण आपां गल करते हैं सो आपां आ गए सीगे NI BA इक्वल्स टू के थीटा। अपन पता N की है नंबर ऑफ टर्न्स जी कॉइल बनाई है वो तार जी वली भी हैगी आप उपर जी आयरन सॉफ्ट आयरन कोर दे वो किन्ने आप कह दिए वाल दिते हुए हैगे आप जी टर्न दिते हुए है। ठीक है, आई अपने को करंट फ्लो कर रहा है जो इतों अपने को आई हो गया बी मैग्नेटिक फील्ड जी इधर जा रही है आप इतने दिखा दीए बी अपने को मैग्नेटिक फील्ड तो जो एरिया कॉइल का एरिया है। ठीक है, ये एरिया ऑफ कॉइल हो गया। आप तुम दसा स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया ये हो गया डिफ्लैक्शन कितनी हुई है थीटा आप कहता भी डिफ्लैक्शन होगी भी एट इक्विलिब्रियम ए थीटा हिल सकिया जी कॉइल है वो थीटा भी अब कह दूरी जहाँ डिफ्लैक्ट हो सकी
ठीक है। हुण आपां जे वैल्यू कढीए करंट दी, करंट कितना फ्लो है K बाय एन बी ए थीटा। ते हुण इत्थे K की है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये पहले ही कांस्टेंट है, ठीक है। एन की नंबर ऑफ टर्न्स, भी नंबर ऑफ टर्न्स आप जिन्नियां दे दियां उन्नियां रहनियां, कोई चेंज तो नहीं होनी ना, ठीक है। अपने कोले जिहड़ा बी मैग्नेटिक फील्ड भी यूनीफॉर्म हैगी है, उन्नी रहनी है, ठीक है। एरिया का बदलदा नहीं हुंदा, ठीक है। आपां उन्ना रखिया हैगा प्रैक्टिकल के तौर पे। हुण ये सारे की है कांस्टेंट, मतलब कि I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू थीटा। I की आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यह की मतलब करंट फ्लोइंग through the coil, ठीक है, is directly proportional to the deflection। भी कितनी डिफ्लैक्शन हुई उन्नी करंट वधूगा। जिवें आपां इत्थों अपने की पता लगी जांदा, जिन्ना ज़्यादा करंट होऊगा इधरों आपां पास करावांगे उन्नी ज़्यादा जिहड़ी की हैगी आ अपने कोले गैल्वेनोमीटर हैगा वो डिफ्लैक्ट होऊगा। ते आपां नूं सिंपल पता हैगा प्रैक्टिकल तौर ते जिहड़ी आपां नूं इत्थे तक पता लग गया, ठीक है। हुण अपने कोले की है गैल्वेनोमीटर, ये अपने कोले आ गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इधर वैल्यूज, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता भी गैल्वेनोमीटर की ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ही क्यों करते हैं, क्योंकि ਆਪਾਂ चेक करना ਹੁੰਦਾ भी कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ਆਪਾਂ की कटा इस कंक्लूजन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जिन्नी डिफ्लैक्ट होगी, जिन्ना करंट ज़्यादा पास होगा उन्नी जिहड़ी कॉइल है डिफ्लैक्ट होगी, ठीक है। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जिन्ना ज़्यादा करंट फ्लो होया उन्ना डिफ्लैक्शन ਆਪਾਂ ਨੂੰ शो हो गया कॉइल का। इत्थों ही पता लगता भी ਭਾਵੇਂ इधरले पासे होवे अपोजिट साइड होवे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ कोई मैटर नहीं करता भी जिन्ना ज़्यादा करंट उन्नी ज़्यादा डिफ्लैक्शन, ठीक है। ये अपने को हो गया वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हुण दो तीन जिहड़ियां हैगियां इंपोर्टेंट टर्म्स हैगियां गैल्वेनोमीटर के बारे, हुण आपां नूं इस बारे पूरा पता लग गया, ठीक है। हुण आपां वो टर्म्स करते अपने कोले फर्स्ट है गया करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। सो अपने कोले जो कंस्ट्रक्शन बनावट हैगी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दी वो आपां इस पिक्चर च देख रहे हैं। तो ये कुछ जिहड़े हैगे इंपोर्टेंट पार्ट्स हैगे आ गैल्वेनोमीटर दे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दे, ते उन्हां बारे आपां डिस्कशन करांगे। हाँ, पहला हैगा कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट्स, जिहड़ा इत्थे अपने कोले आ पिक्चर लिखिआ ये जिहड़े आ मैग्नेट लगे हुए हैं, ये हैगा नॉर्थ पोल आ गया मैग्नेट का, आ गया साउथ पोल, ठीक है। ये मैग्नेट ये इनकी हैगा कॉनकेव, कॉनकेव आपां कह दईए अंदर नूं, कॉनकेव मिरर हुंदा जां आपां कह लेंस हुंदा वो अंदर नूं मुड़िया होया हुंदा। उस तरह भी जिहड़े ये सीधे नहीं है मैग्नेट, ये अंदर नूं मुड़े हुए हैगे आ चीज़ आपां कह दईए इत्थों थोड़े जी इस तरह हैगे आ, इधरों भी वो क्यों हैगे आ, क्योंकि जिहड़ियां आपां नूं यूनीफॉर्म चाहिदी है जिहड़ी अपने कोले मैग्नेटिक फील्ड है, ते ये जिहड़ी हैगी आ इधरों सीधा इधरों इधर जाणगे, इधरों ये आपां हुण इत्थे बन खिच्च आपां इहदा जिहड़ा अपर जिहड़ी साइड हैगी है इस चीज़ की अपने कोले आ कॉइल आ गई, अपने कोले आयरन जिहड़ा सॉफ्ट आयरन कोर आ गई, ये आपां अगे डिस्कस करांगे। पहला आपां वेखिए आ जिहड़ा उपरला पासा हैगा आ चीज़ इहनूं आपां इत्थे बनाईए, आ अपने कोले आ गया मैग्नेट नॉर्थ, ये अपने कोले आ गया साउथ मैग्नेट, ये अपने कोले आ गया कोर। आ इस तरह ये मैं थोड़ा जिहा विजिबिलिटी वास्ते आ दूर दूर बना रहा। आ जिहड़ियां अपने कोले कॉइल दीयां टर्न्स हैगियां
एक तार लैके एक अपने को इन्होंने आ कोर जी हैगी है, पहले दस दिना आ जी कोर है इन्होंने ली भी है, आप कह दी इस तरह की मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट आप ली सिलेंड्रिकल कोर इस तरह ये थोड़ा मार्कर है सिलेंड्रिकल है, इस तरह इन्होंने इस तरह ये फिट किया हुआ जोड़ा हैगा इन्होंने जी वायर ली हुई है वो इस तरह लगाई हुई है। हुण आह हैगा अपने को रैक्टेंगुलर टाइप है, इन्होंने इस तरह ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਇਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਆ ਇਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲੀ ਕੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ फर्क दिखाया क्योंकि जी आह इस कली ने घूमना है। ठीक है, जो अपने को कॉयल आ इन्हें मूव करना है ड्यू टू टॉर्क को पिछले डिस्कस किया। ठीक है, तो हुण जो ये मूव करूगी ये आ सीधी है ये थोड़ी इधर डिफलैक्ट हो सकती है या इधरों डिफलैक्ट हो सकती है। मान के चलो जे इधर थोड़ी जी डिफलैक्ट होती है इस तरह आप दोबारा बनाइए जे इस तरह डिफलैक्ट होती है पर जी आपको मैग्नैटिक फील्ड चाहिए वो सीधी चाहिए जो आ इधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਐ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਐਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟੇਢੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੇ ਐ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰੇਡੀਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਫ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ है, एरिया वैक्टर ते आपां नूं परपेंडिकुलर चाहिए जिहड़ी मैग्नेटिक फील्ड एरिया वैक्टर ऑफ कॉइल ते परपेंडिकुलर चाहिए है। ठीक है, तां करके आपां इस नूं जिहड़ा कॉनकेव टाइप आपां जिहड़े इहदे मैग्नेट लए ने। समझ आ गया, आ कॉइल आ गई आ थोड़ी डिफ्लैक्ट होगी आ उस जिधर नूं इह डिफ्लैक्ट होगी उधर नूं आपां कह दईए रेडियली आ आपां कह दईए आ हो गया ते आ अपने कोले मैग्नेट फिर आपां बना लईए दोबारा थोड़ी चार्ज विजिबिलिटी दी आ अपने को नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, ये अपने को हो गया साउथ पोल। ठीक है, ये इधर भी जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर भी इधर भी इधर भी इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है इतों पास कर रही हैं तां करके जिहड़ी हैगी है ये आपां नूं मैग्नेटिक फील्ड जी टॉर्क है वो आपां नूं मैक्सिमम मिलूगी। वो क्यों मिलूगी वो मैं तुहानूं समझाउणा है। सो करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट या कह दईए कॉइल। ठीक है, इसका मतलब की है भी थीटा डिफ्लेक्शन हुई मान के चलो ते करंट आई फ्लो किया, इसका मतलब यह है भी यूनिट आप कह दईए जिवें हुण ਆਪਾਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀटर की गल कर रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बहुत स्मॉल करंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਕੂਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕੀਤਾ 1 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਸੌਰੀ ਕੂਲਮ ਨਹੀਂ ਐਂਪੀਅਰ 1 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ करंट ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 डिग्री ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਈ 2 डिग्री ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ अपने को फिर आई ऑफ जी कितना आ जाऊगा करंट क्रिटिकल सेंसिटिविटी कितनी आ जाऊगी 2/1 अपने को आ गया ये अपने को यूनिट के हिसाब नाल चेंज हो जाऊगा मिली ते माइक्रो कूलम के हिसाब नाल। ठीक है, ये अपने को प्रूव है भी एक यूनिट दे विच कितना डिफ्लैक्शन हुई यूनिट अपने को हो सकता मिली भी हो सकता माइक्रो भी हो सकता। ठीक है, वो यूनिट अपने डिपेंड भी आप की यूनिट किस मानते हैं 10 मानते हैं एक यूनिट के 1 मानते हैं। ठीक है, ये अपने को करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, हुण आपां जी वैल्यू कढ़िए भी ये किस चीज क्या डिपेंड करता अपने को पिछले जी प्रीवियस इक्वेशन सी उस अपने को की सीगा जो आप कहें भी आ कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इस अपने को आई दी वैल्यू की सी आई दी वैल्यू अपने को आई दी वैल्यू सी के बाय एन बी ए थीटा अपन ये वैल्यू भरिए के बाय एन सॉरी इतने अगर थीटा इतने को अपने को आ गया थले भरनी अपने को के बाय
एन बी ए थीटा थीटे ना थीटा अपने को कैंसल अपने को वैल्यू की आ गई बटे का बटा अपने को की जाऊगा ऊपर जाऊगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से अपने को की जाऊगा ए एन बी ए ये तो अपने की पता लगता है जेड़ा अपने को करंट सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करती है एन ते नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल कह सकते हैं ते मैग्नेटिक फील्ड ते एरिए ते अपने को स्प्रिंग कांस्टेंट ते ठीक है मैं कि जिन्ने आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ावांगे करंट सेंसिटिविटी की करूगी इंक्रीज करूगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिन्नी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी आप कह रही जिन्नी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिन्नी फ्लक्स ज़्यादा होगी उन्नी अपने को करंट सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी जिन्ना एरिया ज़्यादा होगा कॉइल का तो उन्नी अपने को करंट सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी इनक्रीज करूगी ये तीनों चीज़ों से इनक्रीज करूगी तो पर जो अपने को स्प्रिंग कांस्टेंट जो अपने को वध होया तो करंट सेंसिटिविटी की होगी डिक्रीज करूगी ठीक है मतलब कि इन्होंने चीज़ों से करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है हुण अपने को जी अगली टर्म हैगी है वो हैगी है वोल्टेज सेंसिटिविटी ए की है वोल्टेज सेंसिटिविटी it is equals to the ratio of deflection produced per unit voltage applied क्योंकि deflection ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ कोयल दी हाँ कि अपने को डिफ्लैक्शन हुई तो आपको पता बाय ओम्स ला V इज इक्वल्स टू आई आर ठीक है तो अपने को V की वैल्यू आप जे वैल्यू भरीए इतने आई की अपने को वैल्यू की आ गई V की अपने को सॉरी आई की वैल्यू की है आप प्रीवियस किया हैगा N सॉरी K इज इक्वल्स टू N B A थीटा ठीक है जी v की वैल्यू भरी है अपने को v आ गया k बाय n b a थीटा इनटू r ठीक है ये हुण अपन जे v की वैल्यू इत्थे पुट कर गया इस इक्वेशन च ये अपने को इक्वेशन की बन गई v ऑफ g is equals to theta by k by n b a theta into r थीटा थीटा कैंसल अपने को v ऑफ g अपने को की आ गया अपने को बड़े का बड़ा की जाऊगा ऊपर जाऊगा अपने को आ गया n b a k ऑफ r ये अपने को इतों की प्रूव होंदा भी जी वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो इनक्रीज होगी नंबर ऑफ टर्न्स वधन दे नाल ऑफ कॉइल ठीक है मैग्नेटिक फील्ड इनक्रीज होने दे नाल या फ्लक्स दे चेंज होने दे नाल अपने को इनक्रीज होने दे नाल मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी सॉरी वोल्टेज सेंसिटिविटी इनक्रीज करूगी तो जी एरिया ऑफ कॉइल दे वधन नाल भी सेंसिटिविटी इनक्रीज करूगी पर जी है अपने को के स्प्रिंग कांस्टेंट ओदे चेंज होने दे नाल आप कह दिए वधन दे नाल या घटने नाल इसे अपोजिट फर्क पऊगा जो वधूगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी घटूगी जो वो घटूगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी वधूगी ठीक है एक रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस वधूगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी घटूगी वोल्टेज सेंसिटिविटी तो जे रेजिस्टेंस घटूगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इनक्रीज करूगी ठीक है सो ये अपना सीगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैं उम्मीद करता कि थोनू वधिया लग्या होगा सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।